Hello everyone, a warm welcome to all at our YouTube channel CA Sansar. This is Nandita Nangia from CA Sansar and today we are going to discuss about some FlexCube commands by Oracle for bank branch audit. And for that I would like to welcome CIP Vivek Khurana sir. First of all sir, a warm welcome to you at our YouTube channel CA Sansar and thank you very much for giving us your valuable time. Before Vivek sir start his deliberation, I request you all that please subscribe to our YouTube channel CS Ansar and also press the bell icon so that you will receive all the notifications about our new videos and webinars. So sir, nowadays we are receiving so many calls and messages regarding FlexCube commands कि लोगों को फिनेकल और टीसीएस बैंक्स के बारे में काफी कंटेंट अवेलेबल है, आपने काफी सारी वीडियोस बनाई है इसके ऊपर विच आर वेरी यूजफुल फॉर आर ऑल द यूजर्स. सो नाउ सम ऑफ देम आर आस्किंग अबाउट FlexCube commands. Is there any some specific commands so that you can guide us? Thank you very much, Nandita ji, for such a warm welcome. And my sincere thanks to Team CS Ansar for inviting me once again on your platform and to discuss on some other important topic. And you have rightly said that we have recorded many videos on TCS banks and also on Finacle. तो उसके ऊपर आपको फुल फ्लेज वीडियोस भी मिल जाएगा फिनेकल कमांड्स के ऊपर, TCS बैंक्स कमांड्स के ऊपर. बट यस, somewhere we have skipped the FlexCube commands because FlexCube is used by only one bank, Canara Bank. तो थोड़ा सा हमारी भी गलती है कि हमने उसके ऊपर रिकॉर्डिंग नहीं करी. बट यस, आई हैव आल्सो रिसीव्ड मैनी मैसेजेस रिगार्डिंग सर some important command regarding the FlexCube. क्योंकि you know at the time of bank branch audit, at that time we have very short span of time और उस टाइम में हमने ऑडिट कंप्लीट करना होता है. और इफ वी आर नॉट अवेयर अबाउट दिस कमांड्स देन इट्स वेरी डिफिकल्ट. फिर बार बार आपको स्टाफ से या फिर मैनेजर से कहना पड़ेगा, सर वो लोन अकाउंट ओपन कर दो, ये इसका अकाउंट ओपन कर दो, इसका अकाउंट ओपन कर दो. देन इट्स वेरी डिफिकल्ट. फिर बहुत मुश्किल हो जाता है इन दैट टाइम आपको कंप्लीट करना. बट यस, इफ यू हैव दिस नॉलेज देन यू कैन डू योरसेल्फ. तो वी विल डिस्कस ऑन दिस FlexCube कमांड्स. बट अगेन आई एम सेइंग इसके ऊपर हम एक समराइज वे में डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं. मैं आपको पूरा ट्रेन तो नहीं कर पाऊंगा बिकॉज माइट बी मैंने भी इतना ज्यादा FlexCube के ऊपर वर्क नहीं किया बिकॉज मेनली वी हैव डन ऑन द TCS बैंक्स एंड द फिनेकल्स बिकॉज जो मेनली ऑडिट्स में या कंकरेंट ऑडिट में हमारे पास है. कैनरा बैंक का हमने कभी काम नहीं किया ज्यादा. तो वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑन दिस FlexCube कमांड्स. तो इवन उसके बाद भी कोई क्वेरीज हो तो इस ये जो आपकी कमांड्स है इंपॉर्टेंट कमांड्स है वी विल सेंड इनटू द सीए संसार जो टेलीग्राम चैनल है इनका, वहां पे मैं फॉरवर्ड कर दूंगा. वहां पे आपको फिनेकल्स की कमांड्स एंड देन TCS बैंक्स और बाकी सारे जो ऑडिट प्रोग्राम्स है, क्वेश्चन है, काफी कुछ मटेरियल मिल जाएगा आपको, सर्कुलर्स वगैरह. तो बिफोर दैट वन डिस्क्लेमर इज देयर. All these are my personal views and can't be constituted to the views of the ICICA Sansar or any other person or any other authority. And please don't take it any legal advice or the legal opinion, professional advice or the professional opinion. And the purpose of this video is just to spread knowledge, information, awareness, and shall not be treated as solicitation in any manner or for any other purpose whatsoever. Or my request to all of you, please also go through the ICI guidance note, RBI master circular, notification, bank policy that you can check. And regarding core banking system, CBS, we all about हमने इसके ऊपर काफी डिस्कस भी किया है कि all banks and all branches are using the CBS system. And जो मेजर सॉफ्टवेयर है द पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, फिनेकल, देन FlexCube, TCS बैंक्स. तो फिनेकल जो है इट्स बाय द Infosys जो सर्विस प्रोवाइडर सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर है, इट्स बाय द Infosys. FlexCube is by the Oracle Financial Services and TCS banks by the Tata Consultancy Services, TCS. And जो बैंक्स कौन कौन से यूज कर रहे हैं, वी शुड अवेयर एंड वी शुड हैव सम गुड नॉलेज अबाउट दिस कमांड्स. दैट्स व्हाई आई एम अगेन एंड अगेन रिपीटिंग कि एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट कमांड्स है आपको पता होनी चाहिए. तो फिनेकल में जो है इट्स यूज्ड बाय द बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया. तो एज पर नंबर मैक्सिमम बैंक्स फिनेकल यूज कर रहे हैं नंबर वाइज सबसे ज्यादा. एंड FlexCube आई ऑलरेडी टोल्ड ओनली कैनरा बैंक यूज कर रहे हैं. TCS बैंक सबसे बड़ा बैंक जो है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI वो यूज कर रहे हैं. इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र. तो एक जो RBI का सर्कुलर आया था पीछे
14 सितंबर 2020, जिसमें उन्होंने कहा था ऑटोमेशन ऑफ द आईरेक, जो भी इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग प्रिस्क्राइब्ड टू द बैंक, दैट शुड बी ऑटोमेटेड, कि मैनुअल इंटरवेंशन जो है वो कम से कम हो। तो जो भी आपको एनपी क्लासिफिकेशन है, एसएमए 0, 1, 2 या फिर इनकम रिकॉग्निशन है, दैट शुड थ्रू ओनली सिस्टम ओनली, ऑटो जनरेटेड, और उसके लिए 30 जून का टाइम दिया था। नाउ यू हैव टू चेक कि whether they are using it or not. So that's why again and again I'm saying कि आपको these command should have the knowledge of this command। तो कौन कौन सी हैं फ्लेक्स क्यूब में? जो फिनेकल है या फिर आपका टीसीएस बैंक से है, उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में वीडियो मिल जाएगा आपको। मैं रिक्वेस्ट करूंगा टीम सीए संसार से कि उसका वो लिंक वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट्स बॉक्स में आपको जरूर प्रोवाइड कर दे, और आप उसको एक बार चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा, सो दैट जब आप लफार प्रिपेयर कर रहे हो या फिर कुछ और चेक कर रहे हो एनपीए वगैरह का, तो उस डेट में लोन, टर्म लोन या सीसी लोन, तो उस केस में दैट वुड बी यूजफुल। तो फ्लेक्स क्यूब का जो लॉगिन है, जो एक नॉर्मल लॉगिन हम करते हैं, उसमें आपको अकाउंट आईडी, पासवर्ड वगैरह, वो हो सकता है आपका जनरेट भी हो जाए फ्रॉम द हेड ऑफिस इटसेल्फ, जो एलएचओ या हेड ऑफिस से है वो जनरेट हो जाए, अथवा मैनेजर के आपसे वो चेक कर सकते हो, किसी और कस्टमर से, मतलब जो स्टाफ के अकाउंट से चेक कर सकते हो। तो उसमें कुछ जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, जो शॉर्ट कीज है, जिसको हम हॉट कीज कहते हैं फॉर फ्लेक्स क्यूब्स। तो उसमें जैसे हमारे यहाँ पे इसमें भी है, कंप्यूटर्स में भी होते हैं, या फिर हम लोग एक्सेल में भी यूज करते हैं। तो कुछ जो कमांड्स है, जैसे ओल्ट बी है, तो वो आपकी जैसे बैलेंस इंक्वायरी वगैरह है, उसी तरह से आपका ओल्ट सी या ओल्ट ए है। तो उस केस में जैसे अकाउंट्स डिटेल चेक करनी है या कस्टमर नेम एंड एड्रेस इंक्वायरीज है, तो वो आप चेक कर सकते हो। उसमें आपकी बैलेंस इंक्वायरी आ जाएगी, आपके स्क्रीन पे उनके पूरा डिटेल्स आ जाएगा कि क्या क्या उनकी डिटेल्स है। देन जैसे फिर ओल्ट सी में है आपका कस्टमर नेम एंड एड्रेस इंक्वायरीज। देन ओल्ट ए में आपका अकाउंट्स डिटेल आ जाएगा कि अकाउंट्स नंबर क्या है, ब्रांच क्या है, प्रोडक्ट क्या है, करेंसी क्या है। तो जैसे ओल्ट एस में आ जाएगा आपका अमाउंट बेस्ड अकाउंट लेजर डिस्प्ले। तो ये कुछ शॉर्ट्स कमांड है आपकी, वो आपको वैसे ही एक दो बार करेंगे तो उसके ऊपर आपको आइडियाज हो जाएगा। इसकी डिटेल मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखी है कि आपको अकाउंट डिटेल्स में, जैसे ओल्ट ए में चेक करते हो तो आपका डिटेल आ जाती है कि क्या डिटेल ऑफ द कस्टमर, उसका अकाउंट नंबर, अकाउंट ब्रांच, उसको फर्दर आप चेक कर सकते हो डिटेल में। ओल्ट बी में आप बैलेंस इंक्वायरी से चेक कर सकते हो, तो उसमें आपका बैलेंस इंक्वायरी में आपका अकाउंट डिटेल, सेविंग है या क्या क्या उसमें है, करंट बुक बैलेंस, पासबुक वगैरह, नेट बैलेंस क्या डिटेल है। ओल्ड सी में आपका कस्टमर नेम, उसकी एड्रेस इंक्वायरी। ओल्ड पी में अगर आपने प्रिंट आउट, जैसे यहाँ पे हम कंट्रोल पी से कर लेते हैं, उसमें ओल्ड पी से है, तो ओल्ड एस से आपकी अमाउंट बेस्ड अकाउंट इमेज डिस्प्ले है। तो ये सब कुछ एक शॉर्ट कीज है। देन जो उनकी कुछ और कमांड्स हैं आपकी फॉर द पर्पस ऑफ सीबीएस फ्लेक्स क्यूब में, तो ये मैं आपको समरी में बता रहा हूँ कुछ कमांड्स। तो उसकी जहां जहां आपकी नॉलेज है, जहां जहां यूजफुल है, आप उसको एक कॉपी पेन लेके आपने उस पर नोट डाउन कर लीजिए, या वहां से प्रिंट आउट लेके जो भी वहां आपको डिटेल्स है आप चेक कर सकते हो। जैसे अकाउंट मास्टर मेंटेनेंस है, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, उसकी कमांड है CH021। देन नेक्स्ट इज जो कस्टमर अकाउंट बैलेंस है उसका CH701। देन RD अकाउंट बैलेंस है कस्टमर वाइज CH703। CTI कस्टमर सर्च है 2000। कस्टमर, इसमें जो कमांड्स मिलेंगे आपको न्यूमेरिक या अल्फा न्यूमेरिक मिलेंगे, जैसे कस्टमर नेम एंड एड्रेस इंक्वायरी है उसकी 7004। ऑल बैलेंस इंक्वायरी है 7100। डिस्प्ले कस्टमर इमेज इंक्वायरी, अकाउंट्स लेवल बैलेंस इंक्वायरी, जो 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 इंपॉर्टेंट है आपके लिए उसको आप नोट डाउन कर लेना, or that would be useful for your bank branch audit if you have the if you are the auditors of the कैनरा बैंक। उसी में ही फ्लेक्स क्यूब यूज होता है। स्टेटमेंट इंक्वायरी जैसे फिर है CH031। अकाउंट स्टेटस ऑडिट ट्रेल, तो ऑडिट ट्रेल का आपको काफी जगह यूजफुल होगा BAM24। फिर टर्म डिपॉजिट से, जैसे टर्म डिपॉजिट अकाउंट है उसमें बैलेंस इंक्वायरी है या रेट हिस्ट्री इंक्वायरी है, ऑडिट ट्रेल इंक्वायरी है, तो अकाउंट लेजर इंक्वायरी। तो उस केस में अलग अलग है, TD0323, TD031, TD037, TD050, TDS से रिलेटेड TD11। तो ये आपकी जो टर्म डिपॉजिट से है। फिर जो ट्रांजैक्शन वाइज अगर हमने कुछ टेस्ट चेक बेसिस पे कुछ ट्रांजैक्शन चेक करनी है, तो ट्रांजैक्शन में कैसे होगा, आपका लोन इंटरेस्ट एडजस्टमेंट है या पेमेंट ट्रांजैक्शन इंक्वायरी है, तो उसमें LN058, या पेमेंट ट्रांजैक्शन इंक्वायरी में PM025। जनरल लेजर ट्रांजैक्शन है मूवमेंट्स में GLM04। ऑडिट ट्रेल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में 80,002। ऑडिट ट्रेल इंक्वायरी, जो मैंने फिर कहा है, ऑडिट ट्रेल का आपको कई जगह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा, आपको उसकी डिटेल चेक करनी है। 80,002, BA777।
देन जो आपके क्लियरिंग ट्रांजेक्शन्स है, आउटवर्ड क्लियरिंग है या इनवर्ड क्लियरिंग है, तो उसमें ST003, ST033, तो उसमें आपने इंक्वायरी मोड में ही चेक करना है सारे आपके इंक्वायरी, क्योंकि आपको तो बाकी डिटेल में चेक नहीं करना, इंक्वायरी मोड में ही देखना है। देन कुछ आपके जो ऑफिस अकाउंट मेंटेनेंस है, जैसे जनरल लेजर वाउचर एंट्री है, चार्ट ऑफ अकाउंट्स है, मिसलेनियस जेल डेबिट या क्रेडिट ट्रांसफर्स हैं, उसके लिए आपकी इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता, तो बट आपके लिए मैं कमांड बता रहा हूँ। बट जो लोन्स एंड एडवांसेस है, ये आपके लिए बहुत यूज़फुल है, बहुत यूज़फुल रहेंगी। जैसे लिमिट कोलेक्ट्रल इंक्वायरी है कि आपने लिमिट कोलेक्ट्रल चेक करनी है, तो उस केस में CH 066, या फिर ओडी कोलेक्ट्रल मेंटेनेंस है, उस केस में CHM 06, ओडी लिमिट मास्टर मेंटेनेंस है, CHM 07। मैं अगेन आई एम टेलिंग यू कि ये सब जो आपने कुछ टेस्ट चेक बेसिस पे करोगे, तो उसको सैंक्शन लेटर्स को मास्टर डाटा से आप चेक करना है कि कोलेट्रल क्या है, डीपी लिमिट्स क्या है, उसके मास्टर डाटा में कैसे फीडिंग हुई है, वो डिटेल्स आपको चेक करनी है। देन चेक परचेज कुछ है, ST070, एवरेज क्वार्टरली मंथली बैलेंस इंक्वायरी है, तो CH033, लेन है, कोई लेन का मास्टर है उसके ऊपर लेन का, तो TDM G24। देन लोन डिसबर्समेंट इंक्वायरी है 1413। देन अकाउंट शेड्यूल इंक्वायरी है LN522, अकाउंट ट्रांजेक्शन इंक्वायरी है LN510, कोलेट्रल टू अकाउंट इंक्वायरी है BA433, अकाउंट टू कोलेट्रल इंक्वायरी है BA434। दिस इज रिगार्डिंग द लोन्स एडवांसेस, बिकॉज हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोन्स एडवांसेस है। फिर उसके बाद जो आपके चेक बुक मेंटेनेंस है, स्टॉक पेमेंट है एंड सिक्योरिटी स्टेशनरी मेंटेनेंस है, जो आपने उसकी डिटेल चेक करनी है, जैसे चेक स्टेटस मेंटेनेंस है, स्टॉक चेक की क्या रिक्वेस्ट है, ये वहाँ पे क्या फीड हुआ है, CHM35 से आप चेक कर सकते हो, चेक बुक इश्यूज के लिए क्या मेंटेनेंस CHM37 से चेक कर सकते हो, स्टॉक इंक्वायरी आपको ये लफान में भी आएगा IV011। देन इन्वेंट्री कुछ लॉस्ट हो चुकी है जो, और जिसके ऊपर आपको रिपोर्ट भी करनी है IV004, इन्वेंट्री सोल्ड की है तो MCA80। देन कुछ टैक्स पैरामीटर्स हैं जो आपके कंप्लायंसेस में हैं आपके, तो जैसे TDS 06 है, टैक्स वेवर्स है, या कुछ टैक्स इंक्वायरी है, बिल्स पैरामीटर्स हैं, उससे रिलेटेड ये सारी सारी आपकी कंप्लायंस से रिलेटेड आपके ये कुछ कमांड्स हैं। फिर कुछ गारंटी बिल्स हैं, जो बिल्स वगैरह गारंटी है, तो उस केस में गारंटी की इंक्वायरी SY001। फिर बिल्स पैरामीटर मेंटेनेंस है BIM04, बिल्स प्रोसेसिंग मेंटेनेंस है BIM05, बिल्स डाटा एंट्री के लिए BIM001। एंड देन मिसलेनियस कुछ और भी कमांड्स हैं विच कैन बी यूजफुल, तो आपको चेक करना है कि कौन कौन सी आपके लिए यूजफुल है, किस पर्पस के लिए, उसको आप नोट डाउन कर सकते हो। जैसे लोन एरियर्स एजिंग एनालिसिस NP रिलेटेड LN158, देन लोन स्टेटमेंट अदर देन CC अकाउंट LN167, देन जो ओवरलाइन TOD रिपोर्ट है CH118, चेक परचेज रिपोर्ट है, देन RD अकाउंट बैलेंस है या लोन्स अकाउंट विद क्रेडिट बैलेंस है, वो उसके रिलेटेड कमांड्स है। देन कुछ और कमांड्स हैं जैसे इंटरब्रांच, अगर आपकी ब्रांच में कुछ इंटरब्रांच ट्रांजेक्शन सम रही है, आपको लफार में भी रिपोर्ट देना है, तो GL307 है। फिर कुछ लोन बैलेंस मूवमेंट है LN152 है, कस्टमर अकाउंट बैलेंस चेक करने हैं तो आपको CH705 है। देन टाइम डिपॉजिट से रिलेटेड इंटरेस्ट पेड है या अकाउंट ट्रायल बैलेंस है कस्टमर वाइज, तो TD108, TD112, TD114 टाइम डिपॉजिट, तो जैसे आगे उसके नाम है तो मैंने बताया ये न्यूमेरिक या अल्फा न्यूमेरिक होंगे उसमें। देन उसके बाद है जो आउटस्टैंडिंग LCO, ये उसमें आपके अल्फाबेटिकली में आ गई। कस्टमर वाइज ड्यू अकाउंट्स हैं 1 करोड़ से ज़्यादा तो FCC। देन अकाउंट क्लोज्ड, आपके कुछ पर्टिकुलर ड्यूटी की आपकी रिपोर्ट चाहिए तो LN163। देन टर्म डिपॉजिट की कोई मैच्योरिटी रिपोर्ट चाहिए तो मैच्योरिटी, अगर वो उसके रिपोर्ट रिडीम्स हो गए हैं या डिपॉजिट ओपन ऑन दैट है या चेक पेंडिंग फॉर क्लियरेंस है ST015। इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन जर्नल आपको चेक करना है तो ST002। फिर कुछ फ्रेश NPA रिपोर्ट है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, LN192। देन लोन एरियर्स डिटेल विदाउट NPAजिंग LN215। लोन डिसबर्समेंट कोई पेंडिंग रिपोर्ट है तो LN236। लोन अकाउंट वाइज बैलेंस रिपोर्ट है LN351। कोलेटरल इनएडिक्वेसी रिपोर्ट है LN252। लोन अकाउंट ओपन ऑन द डे रिपोर्ट है LN201। फिर ये जो कमांड थी कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं विच आर यूजफुल एट द टाइम ऑफ ऑडिट।
अब हम देखेंगे लफार में या वहां पे भी कुछ और कमांड आई विल लेट यू नो कि जो आपके यूजफुल होंगी फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। जैसे लफार में आपको कैश के ऊपर डिटेल देनी है, कैश का वेरिफिकेशन है, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ कैश बैलेंस या कैश बैलेंस ऑन दैट डेट ऑफ ऑडिट पीरियड। तो उसके लिए आप जो लेजर अकाउंट, चार्ट ऑफ अकाउंट्स या फिर जो जनरल लेजर ट्रांजेक्शन इंक्वायरी, मूवमेंट इंक्वायरी जो GLM-02 या GLM-04 से कैश का अकाउंट आप चेक कर सकते हो। सेम थिंग अगर आपका कोई ब्रांच आपकी आरबीआई या एसबीआई में कोई अकाउंट्स हैं, उसके थ्रू भी वो GLM-2 उसका प्रॉपर अकाउंट ओपन करके वो डिटेल चेक कर सकते हो, और उस केस में आपको रिकंसिलिएशन है या सर्टिफिकेट्स है वो चेक करना है। देन एडवांसेस विच आर मोर इंपॉर्टेंट, जैसे सैंक्शन लिमिट है या ड्राइंग पावर है, तो उस केस में आप चेक कर सकते हो CHM-07, उसमें आपका ओडी लिमिट मास्टर मेंटेनेंस आ जाएगा। CHM-409 में आ जाएगा ओडी लिमिट हिस्ट्री रिपोर्ट आ जाएगी। देन एडवांसेस में भी फर्दर जैसे आपको चेक करना है अकाउंट्स एंड कस्टमर मास्टर पैरामीटर सेटअप, जिसमें आपका इंटरेस्ट पैरामीटर सेटअप है, रीपेमेंट इंस्ट्रक्शन क्या है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन क्या है, लिंकिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट विद बेंचमार्क है। एंड दिस यू कैन चेक ऑन टेस्ट चेक बेसिस आपके सैंक्शन लेटर से, कि जो यहाँ पे फीड हुआ है अकाउंट कस्टमर मास्टर डाटा में, दैट्स द सेम। इसी के थ्रू अगर इसी में कुछ डिस्क्रिपेंसी है तो आपका टोटली एनपीए के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कि अगर आपने कोई, जैसे फॉर एग्जांपल ईएमआई है, ईएमआई आपकी कुछ अमाउंट तक 10,000 थी और आफ्टर सम टाइम वो चेंज होके 11,000 होगी, बट उसमें आपने चेंज नहीं किया, या फिर डेट आपकी फर्दर डेट हो गई 1 अप्रैल 23 की, या कोई और डेट डाल दी, बाई चांस हो सकता है उसमें जो आपके एरर्स है अनइंटेंशनल या फिर इंटेंशनल, तो फिर फ्रॉड हो जाएगा। तो उस केस में यू कैन क्रॉस चेक, जो टेस्ट चेक बेसिस पे कहते हैं ना कि सीबीएस से है सब कुछ, सीबीएसटी कुछ भी ठीक नहीं, सीबीएस कंप्यूटर मतलब कुछ अकल नहीं है कंप्यूटर को, जो आप डालोगे वही कंप्यूटर उसका है, जो इनपुट दोगे वही आउटपुट आएगी। तो सेम थिंग आपको चेक करना है मास्टर डाटा से, तो इसके लिए अलग अलग कमांड है। BM-12 इंटरेस्ट इंडेक्स मेंटेनेंस, BM-13 इंटरेस्ट इंडेक्स रेट्स, देन लोन प्रोडक्ट रेंट प्लान, LN-060, LNM 41 इंटरेस्ट रेट है, देन प्रोडक्ट इंटरेस्ट आर्बिट्रेट मेंटेनेंस, LNM-42 रेट चेंज, LNM-81। इसके साथ साथ आप इनकी ऑडिट ट्रेल भी चेक कर सकते हो। देन एडवांसेस में ट्रांजैक्शन इन बोरोवर अकाउंट, CH-031 आपकी स्टेटमेंट इंक्वायरी, इंटरेस्ट रेट हिस्ट्री में LN-02 इंटरेस्ट कॉल रेट, LN-608 इंटरेस्ट चार्जेस रिपोर्ट, LN-801 लोन इंटरेस्ट रिपोर्ट। देन टेम्परेरी ओवरड्राफ्टी ओडी में जो अगर आपने देखना है तो CHM-07 में आपको ओडी लिमिट मास्टर मेंटेनेंस एडोक लिस्ट कोई ओडीओ की आपकी मिल जाएगी। देन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स सच एज अकाउंट बेस्ड क्राइटेरिया, एनपीए वगैरह का। ACA-02 में आपका क्रेडिट रिस्क रेटिंग इंक्वायरी मिल जाएगी। LN-196 में नॉन परफॉर्मिंग लोन डिटेल्स रिपोर्ट मिल जाएगी। LN-191 में आपका अकाउंट्स इन एनपी स्टेटस मिल जाएगा। देन इंटरेस्ट रिपोर्ट, LN-02 आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन इंक्वायरी, LN-608 इंटरेस्ट चार्जेस रिपोर्ट, LN-801 लोन इंटरेस्ट रिपोर्ट मिल जाएंगी। देन कुछ प्राइमरी एंड कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी मेंटेनेंस के लिए आप चेक कर सकते हो CH-066 में लिमिट कोलेक्ट्रल्स इंक्वायरी, एंड CHM-06 में ओडी कोलेक्ट्रल मेंटेनेंस। देन लीन मार्केटिंग जो मैंने बताया एफटी या फिर कोई डीमैट वगैरह उनके वगैरह के ऊपर है, तो उस केस में आप चेक कर सकते हो लीन मास्टर TDM-24, स्टेटमेंट इंक्वायरी CH-031, and then passbook update 7010, LNM-10 account transaction inquiry, LN-421 statement of account of NPA। देन स्टेशनरी वगैरह जो हमने स्टेशनरी वगैरह का टेस्ट चेक करते हैं, फिर उसकी लफार में भी रिपोर्टिंग करते हैं, उसका फिजिकल वेरिफिकेशन और कंफर्मेशन है तो आप चेक कर सकते हो। IUV-011 स्टॉक इंक्वायरी क्या है, IUV-001 स्टॉक ट्रांजेक्शन क्या है, IUV-002 स्टॉक की एडजस्टमेंट क्या है। फिर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर भी हमें लफार में रिपोर्टिंग करनी पड़ती है रिगार्डिंग द ऑफिस अकाउंट। इसकी डिटेल आपने चेक करनी है तो लफार के ऊपर पूरा वीडियो, बट उसमें फ्लेक्स क्यूब की कमांड्स नहीं मिलेंगी, फिनेकल की या TCS बैंक की कमांड्स मिल जाएंगी, वहां पे मेंशन है। तो ऑफिस अकाउंट में सस्पेंस या सन्डी सेक्टर जो आपने रिपोर्टिंग डेट पर दिया कि आउटस्टैंडिंग एंट्रीज हैं, कितने टाइम से हैं, क्या प्रोविजन रिक्वायर्ड है, तो उसमें आप चार्ट जैसे GLM-02 में आप सस्पेंस अकाउंट से चेक कर सकते हो या फिर संडे अकाउंट से चेक कर सकते हो। फिर GLM-04 से आप जो जनरल लेजर ट्रांजेक्शन एंड मूवमेंट इंक्वायरी है वहां से चेक कर सकते हो। TDS रिलेटेड अगर आपने कुछ कंफर्मेशन चाहिए, TDS इंक्वायरी, TDS-11 इंक्वायरी ऑन प्रोजेक्टेड टैक्स, TDS-15। सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग द फ्लेक्स क्यूब जो यूज हो रहा है बाय द कैनरा बैंक, फ्लेक्स क्यूब कमांड्स विच आर बाय द ओरेकल। सो
दीज आर सम इम्पोर्टेंट कमांड्स। इसके अलावा पूरी डिटेल्स है उसमें, बट अगेन आई एम सेइंग आपको कुछ वो एक्सपर्ट नहीं बनना उसके ऊपर, फ्लेक्स क्यूब्स के ऊपर। यू मस्ट हैव सम गुड नॉलेज अबाउट दिस कमांड सो दैट यू कैन वर्क प्रॉपरली। कि आपको जब बैंक में बैठना है तो ये नहीं देखना कि बैंक मैनेजर को कहना है कि सर इसका कैसे ओपन होगा, ये कहाँ से चेक करना है, एमपीएस डिटेल्स कहाँ से चेक करनी है, कस्टमर मास्टर डिटेल कहाँ से चेक करनी है, मास्टर डाटा कहाँ से चेक करना है, सैंक्शन लेटर से कंपेयर करना है। तो यू शुडंट बी द हैंडीकैप्ड कि आप इंडिपेंडेंटली सब कुछ खुद कर पाए। तो इसीलिए ये कैनरा बैंक्स के जो भी आपके ऑडिटर्स हैं या व्यूअर्स हैं, तो आई होप उनके लिए यूजफुल होगी। एंड एक और वीडियो विल ट्राई, मेरे को अगर टाइम मिल गया, बिकॉज आई हैव आल्सो, मेरे को भी कुछ ब्रांचेस ऑडिट करनी है, हमें भी अलॉट हुई हैं, तो वो भी कंप्लीट करना है। बट यस, ये संसार टीम बुला लेती है कई बार, तो विल ट्राई टू डू जो एनपी आइडेंटिफिकेशन इनटू द सीबीएस सिस्टम। उसमें मैंने जैसे आपको बताया कि ऐसा नहीं है कि कंप्यूटराइज है तो सब कुछ है। आरबीआई ने मेंशन किया है कि आपको सारा कुछ ऑटोमेशन में करना है, कंप्यूटराइज करना है, बट इट्स नॉट पॉसिबल। जब तक सीसी अकाउंट चल रहे हैं ऐसा हो नहीं पाएगा। तो हम कुछ बताएंगे आपको कि एनपीए की आइडेंटिफिकेशन भी आप उसके थ्रू चेक करके मास्टर डाटा से आप कुछ कुछ केसेस में कैलकुलेट कर सकते हो। बट दिस इज for today regarding the FlexView commands, and my sincere thanks to team CS Ansar for giving me the opportunity. And if you have any further query, Nandita ji, then we can discuss, you can ask with me, otherwise this is from my part. तो मैंने जो भी मेरे को आइडियाज था रिगार्डिंग द फ्लेक्सिव कमांड्स, तो मैंने आपको बता दिया। Sir, thank you so much for such a wonderful presentation, and I request you all that please like the video, share it with your maximum friends so that they can also get the benefit through it. Thank you so much for joining. Thank you very much everyone, and my request to all of you, they people are doing very well job, मतलब टाइम टू टाइम आपके लिए वीडियोस लेके आते हैं। तो नाउ इट्स आवर ड्यूटीज, तो इनको ज्यादा मोटिवेट करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक्स करें, कम शेयर्स करें विद योर फ्रेंड्स। तो आई होप it will you people will take my request. So bye bye, take care.